Hello everyone. Today I am going to start new chapter that is about the rolling processes. In previous lecture, I explained about the wire drawing process and I completed the chapter number 6 that was about the extrusion processes and wire drawing processes. So in basically here you can see in the rolling process the material which is basically the ingot which is compressed or pressed between this roller and this material is first heated or it can be cold rolled, and here there is multiple rollers can be possible. We will later on discuss the various types of rolling mills and various I sections or different types of sections channels can be rolled using rolling process. Even the ring shaped diameter, here this is the ring rolling process. If the ring shape section is there, it here it is with the cross section is rectangle, but it is in a ring form that can be also rolled using this process. Now in rolling process, the thickness of material reduces at the expense of its length. Its length increases here. The length increases but the thickness of this T decreases. Here length will increase and the width will remain constant during rolling process. So first let us discuss, in today's lecture we will discuss the principle of rolling. So rolling is metal forming in which metal is squeezed by passing it between rotating rolls as shown in figure. Here there is one billet of raw material that is squeezed between these two rolls. So what happens here, there will be the reformed crystals in the hot rolling. यहाँ पे जो crystals होंगे वो reform होंगे और ये जो larger shape में है that are the original crystals. This is the upper roller and this one is the lower roller. The both the rollers will be rotating. This will be rotating in the clockwise direction, so this will be rotating in anti-clockwise direction. So both roller will be rotating in opposite direction. Now the deformed crystal due to rolling and then final reformed crystal in hot rolling, and there will be angle of contact between the roller will be in contact with the material only in this zone. This will be look like this only during this zone, that is L and L to M. During this arc the roller will be in continuous contact and there will be point of no slip, that is N. At this point there will be no slip of raw material, and the lower roller is fixed to its position while we can change the height of this upper roller. Now let us discuss the theory of it. So rolling can be of both types, that is hot rolling or cold rolling. Then friction between rolls and metal being rolled helps the roll grip the metal and draw it between rolls. यहाँ पे जो रोलिंग प्रोसेस है वो बेसिकली कैसे होगा कि ये जो बिलेट है यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है मेटल, that is pushed by using this rolls. जो metal rolls और जो ये वर्कपीस है हमारा सॉरी मेटल है उसका जो सरफेस है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ये जो है ये पार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुश होगा और ड्रॉ होगा between the rolls. The roll contact the workpiece an arc LM as shown, और जो कांटेक्ट होगा यहाँ पे भी L to M कांटेक्ट होगा इस फॉर्म में और यहाँ पे भी L to M कांटेक्ट
होगा। At the entry point L, the surface speed of rolls is more than the speed of workpiece, and the friction between the rolls and workpiece acts in the forward direction, drawing the workpiece between the rolls. यानी कि एंट्री पॉइंट में क्या होगा कि जो L है, द सरफेस ऑफ रोल इज मोर देन, जो यहाँ पे स्पीड होगा वो कितना होगा एंट्री पॉइंट पे, L the surface speed of the rolls is more than the speed of workpiece, and the friction between the rolls and workpiece acts in the forward direction, drawing the workpiece between the rolls. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एंट्री पॉइंट है L, वहाँ पे सरफेस स्पीड शो होगी वो ज़्यादा होगी। L पॉइंट पे सरफेस स्पीड, यहाँ पे जो स्पीड है Vs सरफेस स्पीड, that will be higher for the workpiece, and the friction between the roll and workpiece acts in the forward direction, drawing the workpiece between the roll. और जो फ्रिक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, एंड that will help to draw the workpiece in this particular direction. The speed of workpiece increases as its thickness is reduced, so that at the exit point M, the speed of workpiece is much more than the surface speed of the rolls. So यहाँ पे क्या होगा कि जो भी स्पीड होगी वर्कपीस की, यहाँ पे लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे क्या होगा कि लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो सरफेस स्पीड होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एट द पॉइंट M। यहाँ पे M जो होगा, यहाँ पे जो सरफेस स्पीड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे जो इनलेट स्पीड है, ठीक है, इनलेट स्पीड है, उससे जो यहाँ पे आउटलेट स्पीड होगी वो यहाँ पे कम होगी, यानी कि ये वाली स्पीड कम होगी और ये वाली स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो स्पीड होगी एग्जिट स्पीड M पॉइंट पे वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस जो है वो कम हो गई। सपोज इनिशियली TI थिकनेस है और तो आउटलेट थिकनेस TO है, और जो VI जो है वो इनिशियल स्पीड है, तो VO आउटलेट स्पीड। सो आउटलेट स्पीड VO विल बी ग्रेटर देन VI as the thickness TI is greater than TO. So workpiece is having much more surface speed at point M, or which is the exit point. At a point N along the arc of contact, the speed of workpiece is same as that of rolls. जो N पॉइंट है वहाँ पे जो वर्कपीस की जो स्पीड होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ रोल्स। जो रोल की जो स्पीड है उसी की उतनी ही स्पीड वर्कपीस की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्लिप पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से जो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ नो स्लिप। यानी कि जो भी रोल की स्पीड है, द स्पीड ऑफ रोल्स इज इक्वल टू द वर्कपीस फीड रेट। जो वर्कपीस जितनी स्पीड से एंटर होगा, ठीक है, ये वर्कपीस की स्पीड और रोलर की रोटेटिंग स्पीड, ये दोनों यहाँ पे मैच होगी एट पॉइंट N, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ नो स्लिप। यानी कि पॉइंट ऑफ नो स्लिप किसको कहेंगे, द पॉइंट वेयर द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट द स्पीड ऑफ वर्कपीस इज सेम एज दैट ऑफ रोल। जो रोल की स्पीड है वही वर्कपीस की स्पीड होगी। फ्रॉम N to exit M, the metal is in effect being extruded, and the friction force between the metal and the roll is opposite to direction of motion and hinders the reduction of metal. अभी N से M तक क्या होगा कि metal is in effect being extruded and the friction force between metal and roll is in opposite direction। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे है, ठीक है, ये रोलर यहाँ पे रोटेट होगा, ये वाला रोलर यहाँ पे रोटेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम N टू एग्जिट पॉइंट M, यानी कि N पॉइंट से M पॉइंट तक क्या होगा, जो पार्ट होगा वो एक्सट्रूड होगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी इन
ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यानी कि जो मोशन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा और उसकी वजह से जो मेटल रिडक्शन में वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। The position of point of contact along the arc of contact depends on parameters of rolling like diameter of roll, amount of reduction, then the coefficient of friction। यहाँ पे जो भी पोजीशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की along the arc of contact depends on पैरामीटर्स लाइक जैसे कि डायमीटर हो गया रोल का, इसका डायमीटर कितना है d, देन अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना रिडक्शन होगा टी आई में से टी ओ, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस रोल एंड द वर्क पीस, दैट इज आवर म्यू। सो इतने पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करेगा द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अलॉन्ग द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री पैरामीटर्स, दैट इज डायमीटर, then amount of reduction and coefficient of friction. As the amount of reduction increases, the increasing arc of contact Lm point N shifts towards the exit point M। जैसे कि यहाँ पे amount of reduction बढ़ेगा, जो भी arc of contact L to M है, point N shifts towards the exit point M। जैसे ही रिडक्शन इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ रिडक्शन, वैसे ही आर्क एल टू एम होगा वो इंक्रीज होगा और पॉइंट एन जो है वो शिफ्ट होके एम तक आ जाएगा। व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट शोन इन फिगर बिकम्स वेरी लार्ज, द मटेरियल कैन नॉट बी ड्रॉन थ्रू द रोल्स इवन इफ प्लेस्ड बिटवीन देम। अभी ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो अगर वेरी लार्ज हो गया, ठीक है, सपोज ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इतना लार्ज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मटेरियल है वो रोल, हम यहाँ पे रोल दो, जो रोलर होगा उसके बीच में मटेरियल तो हम फीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वो उसमें से पास नहीं होगा। तो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे ये जो एंगल है that is called as angle of contact, and if it becomes very large, metal cannot be drawn through the rolls even if it is placed between them। अभी इन दोनों के बीच में अगर हम प्लेस भी कर देंगे तब भी हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा। The maximum angle of contact for which the metal is drawn by the rolls without pushing is called as angle of beat। जो एंगल ऑफ बीट है वो क्या है, जो भी मैक्सिमम एंगल अलाउड है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिसमें हम रोलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज़ वी कैन पुश द मटेरियल विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट और by only by rolls which the metal is drawn by the rolls without pushing, यानी कि एक्सटर्नल यहाँ पे बैक साइड पे कोई भी हमको पुश अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो उस कंडीशन में ये रोल के और वर्कपीस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसी की वजह से ये यहाँ पे ड्रॉ होगा इन द रोलिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ बाइट। In passing between the rolls, the crystals in the metal are elongated in the direction of rolling as shown in figure। यहाँ पे जब रोलर्स के बीच में यहाँ पे सबसे पहले जो ये आप देख सकते हो कि जो रोल ओरिजिनल क्रिस्टल साइज़ है वो लार्ज साइज़ है, बाद में ये जो क्रिस्टल्स है आपको वो फ्लैट होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। जब रोलिंग होगा तो वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएंगे और बाद में वो जो हॉट रोल्ड पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हीटिंग किया है तो उसमें स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे अगर हम एग्जिट में हीटिंग भी करेंगे या तो फिर जो हॉट होगा उसको कोल्ड करेंगे तो यहाँ पे एंड फॉर्म में क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो।
In hot rolling, these crystals are again reformed, but in cold rolling, they retain the shape given to them by the rolling action. यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है ये हॉट रोलिंग की दी गई है. तो हॉट रोलिंग में क्या होगा कि यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे स्मॉल स्मॉल, लेकिन अगर कोल्ड रोलिंग है तो यहाँ पे जो एंड पोर्शन होगा वो इस तरीके से कुछ जो होगा एक्सट्रूडेड पार्ट, उसके अंदर इस टाइप के क्रिस्टल हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है. In order to be able to draw the metal between them and squeeze it, the roll should apply both a frictional drawing force and normal squeezing force. अभी यहाँ पे ड्राइंग के लिए दो फोर्स चाहिए होंगे. सबसे पहला एक तो नॉर्मल स्क्वीजिंग फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द रोल, अपर रोल एंड लोअर रोल. द स्क्वीजिंग फोर्स बाय द, ये रोल जो है ये फिक्स्ड है और यहाँ पे ये मूविंग है, तो यहाँ पे जो स्क्वीजिंग फोर्स है वो अप्लाई करना होगा. और दूसरा जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन रोल सरफेस एंड द आवर बिलेट, जो बिलेट है उन दोनों के बीच में जो, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है वो होना चाहिए. और दूसरा जो स्क्वीजिंग फोर्स है नॉर्मल फोर्स वो यहाँ पे लगना चाहिए. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे दो फोर्सेस लगने चाहिए, एक ये वाला फोर्स और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पे लगना चाहिए. तभी हम मेटल को प्रॉपर वे में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. द नॉर्मल प्रेशर may be up to several times the yield pressure of the material depending upon the severity of operation. जो normal pressure होगा that can be several times the yield pressure. जो normal pressure है that is जो भी normal pressure है, suppose Pn है normal pressure, that will be greater than several times greater than the yield strength. जो भी yield strength है सिग्मा y है उससे या फिर yield pressure है मटेरियल का उससे बहुत ही ज़्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन द सीवरिटी ऑफ ऑपरेशन. द नॉर्मल फोर्स applied by rolls on the work results in separating force on rolls. जो भी नॉर्मल फोर्स होगा रोल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे रिजल्ट्स इन द सेपरेटिंग फोर्स ऑन रोल्स. दिस फोर्स टेंड्स टू पुश द रोल्स अपार्ट. यानी कि ये जो फोर्स होगा वो रोल्स को यानी कि एक दूसरे से दूर पुश करने की कोशिश करेगा. फॉर अ गिवन रिडक्शन smaller diameter rolls permits smaller separating force compared to large diameter roll. जो भी स्मॉलर डायमीटर्स रोल्स होंगे वो स्मॉलर सेपरेटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे कंपेयर टू लार्जर डायमीटर. लार्जर डायमीटर होगा तो वो ज़्यादा सेपरेटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे. द नॉर्मल प्रेशर अप्लाइड ऑन द रोल ऑन द मेटल वेराइज अलोंग द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेटल एंड रोल्स. यानी कि ये जो नॉर्मल प्रेशर जो अप्लाई होगा दैट विल बी वेराइंग फ्रॉम L टू M, जो भी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है. ठीक है. इसको एनलार्ज करके दिखाओ तो यहाँ पे L पोजीशन से M पोजीशन तक दैट विल बी वेराइंग. जो N पॉइंट है दैट इज सेंटर पॉइंट, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा और फिर यहाँ पे और यहाँ पे बीच में जो होगा वो कम होगा. यानी कि इस फॉर्म में वेराइंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा. द अमाउंट ऑफ रिडक्शन पॉसिबल इन अ पास इन रोलिंग इज लिमिटेड बाय द पावर एंड रिजिडिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड प्लास्टिसिटी ऑफ मेटल बीइंग रोल्ड. जो भी अमाउंट ऑफ रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा इन अ पास इन रोलिंग इज लिमिटेड बाय पावर एंड रिजिडिटी ऑफ द इक्विपमेंट. जो इक्विपमेंट है उसका पावर कितना है, फिर रिजिडिटी कितनी है, जो रोलर्स की प्लेसमेंट हमने कैसे की है,
एंड द प्लास्टिसिटी ऑफ मेटल बीइंग रोड। अगर वो मेटल बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक है, मतलब वो इजीली डिफॉर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा हम रिडक्शन उसका कर सकते हैं, लेकिन वो अगर मटेरियल प्लास्टिक नहीं है, उसका डिफॉर्मेशन इजीली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे जो रिडक्शन में है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ रिडक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। The larger the reduction attempted, greater will be the force and power consumption of the mill. So this is the simple fundamental. जितना ज़्यादा रिडक्शन हमको चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स हमको चाहिएगा, और पावर ऑफ मिल उतना ही ज़्यादा होना चाहिए. So this is about the principle of rolling. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.